ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में थोड़ी बात नेगेटिव है, लेकिन मैं पहले ही डिस्क्लेमर कह दूँ कि मुझे तो लगता ही है कि ट्रैवल बैन एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन ये जो मैंने फैक्ट देखे थे वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जो बात उनकी गवर्नमेंट के बीच चल रही है उसके बारे में। तो पहले तो जस्टिन ट्रूडो ने कल एक रियर्सन यूनिवर्सिटी के वेबिनार में उन्होंने पूरी तरह से डग फॉर्ड को कहा है, जो भी वो लोग ट्वीट कर रहे थे इतने दिन से उसका आंसर किया है। तो पहले वो आप वीडियो देख के आइए। Measures that limited importation to a very, very serious level. And a few weeks ago, in sitting down at a First Minister's meeting, Doug said to me, you've got to reduce the number of people coming into Ontario. I said, okay. 30,000 plus international students, including, I'm sure, a whole bunch of people watching this webcast at Ryerson, have come in to Ontario over the past number of months. Now, I know this because you asked us to let them in. You said that you were confident because we set up a program where universities and colleges could set up a protocol and a quarantine process that would control any importation and spread. But Doug, if you want us to suspend international students, just tell me, send us an official note and we'll do that. If you want us to suspend international travelers, if you want us to do any more, we will do that. Just tell me what you want to do. And that was like 4 weeks ago that he said to me, okay, I want you to suspend international students. I said, okay, you're going to be getting calls from university students, university presidents, but okay, you tell me that, fine. I'll follow up with you tomorrow and you just send me the note. And he never did. And he never followed up with that request or any other request for us to actually reduce the numbers of people coming into Ontario. Now, remember, we have 4 international airports across the country. They've all been accepting people. And in Quebec, in BC, and even in Alberta, where they did have a serious spike in the third wave, they weren't blaming it on international travel. ओके, सो आपने वो पूरी वीडियो देखी। अभी उसमें उन्होंने कहा है जस्टिन ट्रूडो ने कि एक बार वो मुझे लिख के दे देना कि मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन करना है तो मैं कर दूँ, ठीक है। लेकिन उसको भी पता है कि जब भी वो ऐसा करेगा तो जो कॉलेजेस की प्रेसिडेंट है वो लोग उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे। सो इट्स अ सिंपल पॉलिटिक्स यार। अगर वो लोग बंद करेंगे अगर बॉर्डर्स फिर से, तो क्या होगा कि डग फॉर्ड को अपने ऊपर नहीं लेना है, उसको चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट बंद करे, वो कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे। क्योंकि अगर उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी तो जो कॉलेजेस वाले हैं वो उनके ऊपर चढ़ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ऑन्टेरियो और टोरंटो में स्पेसिफिकली टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड दैट ऑल। सो उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे इंडिया से ही बहुत सारे बच्चे जाते हैं। सो इट अफेक्ट्स देयर ऑलरेडी पिछले 1-2 ईयर्स से ऐसा हो रहा है। और अभी जब इंडिया के केसेस इतने घट रहे हैं, वो तो मैं आगे बताऊंगा, तो अभी तो कोई चांस नहीं है कि वो करेगा ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। और अभी अब डग फॉर्ड का स्टेटमेंट आया था, वो देख के आइए। And we saw what happened there. Now we're getting a few more vaccines, which is good. And we're grateful for that, and we're getting them out. And to make sure we secure the borders. And it's just not happening. There are 3,000, just at Pearson alone that we know of, 3,200 people since January have come in here with COVID. Not to mention the thousands on the land border. And it's just unacceptable. I sit back and think, there's a problem, and he's not doing anything about it. Like, what gives? You want to protect Canadians, you want to protect Ontarians, you want to stop variants from coming in when 90% of people with COVID has come in through the airports or the land borders. I'll tell you, these variants, as I always say, they didn't do the backstroke across the ocean, or they didn't fall from Mars. They came in because our porous borders. And I've been saying this for months, not just weeks, months. I've sent 4 letters. I've got on the call with them, with all the other premiers. Every premier, all 12 other premiers in the province heard me pretty clearly when we're on a conference call. What gives? Protect the people of Ontario. Protect Canadians. It's as simple as that. ओके, तो ये आई थिंक सो में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जस्टिन ट्रूडो को सामने उंगली करके
तो उसका आंसर आपने पहले देखा उसकी वीडियो में। ये तो यही कह रहे हैं कि भाई ये कुछ कर नहीं रहा है, इसे सिर्फ वैक्सीनेशन और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर सब लूप होल्स है और वो सब। अगर हम देखें अभी तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो रिस्पॉन्डेड टू क्वेश्चन अबाउट हिज रिलेशनशिप विद प्रीमियर डग फोर्ड। आई नो दैट द प्रेशर इज माउंटिंग ऑन प्रीमियर फोर्ड एंड इट इज़ ऑलवेज एन ईजी थिंग टू ट्राई एंड रिफ्लेक्ट एंड पॉइंट फिंगर्स. Trudeau said Ford has repeatedly attacked the federal government restrictions on land and air borders and has said the third wave of the pandemic is largely due to porous borders. फिर दूसरा स्टेटमेंट ये कहा है कि ऑन्टेरियो प्रीमियर डग फॉर्ड इज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट criticism of his response to COVID-19 pandemic by pointing fingers at the federal government's हैंडलिंग ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर. प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो सेड फ्राइडे. सी जैसा आप देख सकते हो कि फेडरल गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर. एक बात हमेशा याद रखना, जो फेडरल गवर्नमेंट है वही जो बॉर्डर्स है मेंटेन करती है. सो भले ही जो डग फॉर्ड है इतना कूद ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो जो जस्टिन ट्रूडो चाहता है वही होगा. सो अभी तक तो उन्होंने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है मतलब ट्रूडो को. अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आई एम नॉट गोइंग टू पिक अ फाइट विथ हिम एट दिस पॉइंट. I don't think anyone wants to see people fighting during COVID. Trudeau said they want to see us focused on getting through it. Okay. बट अभी क्या हुआ कि जब ये बात कल जस्टिन ट्रूडो का ये वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके बाद प्रीमियर फोर्ड के जो ऑफिस में से एक बात पड़ी कि बट द प्रीमियर्स ऑफिस सेड द प्रोविंस रिक्वेस्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन द मल्टीपल लेटर्स दैट वर सेंट टू द फेडरल गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग अनदर लेटर सेंट फ्राइडे को सेंड किया था. अभी Ford has previously said 4 letters to the Prime Minister have all gone without a formal response. To date, there has been no action on any of these requests. If the federal government jurisdiction and responsibility to fix this national problem, we will continue to call on them to close the loopholes at our land and air borders. Ford's press secretary Alexander Adamo said Friday in an emailed statement. तो ये हमारा मतलब ये पीछा तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी बैठने वाले में से नहीं है. मतलब हम हमारे जो इंडिया के स्टेट्स है उसकी वजह से अगर उनको एयर बॉर्डर्स बैन करनी है तो दूसरी कंट्रीज़ को भी बैन करना पड़ेगा, वरना अगर वो फिर से इंडिया को बैन करेंगे तो इट विल बी टोटली डिस्क्रिमिनेशन. आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि क्यों डिस्क्रिमिनेशन होगा वो मैं आपको आगे चल के कहूँगा. फिर नीचे देख सकते हो, ट्रूडो सेड फॉर्ड हैज़ नॉट फॉलोड अपॉन द रिक्वेस्ट टू सस्पेंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अ कन्वर्सेशन ही सेड ही हैड विद द प्रीमियर सम 4 weeks अगो. 4 weeks अगो यानी कि आज से 4 weeks अगो मान के चले, तो जब वो बैन लगा था तभी उससे थोड़े दिन पहले उनकी ये हुई थी. तब ट्रूडो सेड फॉर्ड हैज़ नॉट फॉलोड अप ऑन द रिक्वेस्ट टू सस्पेंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. उसने कोई ऐसा रिक्वेस्ट की नहीं है और ऊपर वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमने डॉक्यूमेंट भेजे हैं. तो इस सब में क्या सच है और क्या नहीं वो पता नहीं, लेकिन इससे हमें ये बात तो पता चलती है कि डग फॉर्ड को अगर लेटर भेजते हैं वो, तो उसमें उनको जिक्र नहीं करना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन कीजिए. क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो जो कॉलेजेस के ये जो प्रेसिडेंट है वो उनके ऊपर चढ़ बैठेंगे कि भाई क्या वो सब हमारी इकोनॉमी और वो सब. आपको पता ही है जैसे पहले किया था तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया था. फिर जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि भाई जब तक डग फॉर्ड हमें रिटर्न में नहीं देते कि भाई हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन करना है तब तक हम नहीं कर सकते. एंड अगर उनको करना है तो वो मुझे रिटर्न में दे, आई विल डू. लेकिन वो होने वाला नहीं है. अगर उनको देना ही होता तो कब के वो लोग दे देते. अगर उनको इतना ही था तो मुझे ऐसा लगता है ये ट्वीट के ऊपर उनका थॉट्स नहीं जमाते, मुझे ऐसा लगता है. बाकी तो अभी आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या कहते हैं. अभी हम आते हैं क्यों आज के जो ये तो थोड़ी बात थी जो कंट्रोवर्सी उधर चल रही थी, ये तो उनकी पॉलिटिक्स है, ये एक दूसरे को ये कर रहे हैं. लेकिन डोंट वरी यार, अभी तो मुझे हाईली लगता है कि June 21 डेफिनेटली बॉर्डर्स ओपन होगी. टेक माई वर्ड्स यार. ऑन्टेरियो में 663 न्यू COVID-19 केसेस आए थे कल एंड 10 मोर डेथ्स. और उसमें एक नई अपडेट ये है कि 10 मिलियन डोजेज एडमिनिस्टर्ड अक्रॉस प्रोविंस एज ऑन्टेरियो ऑल्सो मार्क्स माइलस्टोन ऑफ 1 मिलियन पीपल फुली वैक्सीनेटेड. और जो 2 weeks में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 21 आएगा तब तक 75% जो कि उनका ट्रेडमार्क वो लोग कह रहे थे कि भाई 75% के लोग अराउंड हमें वैक्सीनेटेड चाहिए, तो वो अचीव वो लोग कर देंगे. तो अगर हम अभी आज के कोविड के केसेस देखें इंडिया में कल आए थे 1,01,232. सो जस्ट इमेजिन 1,000 ही ज़्यादा है, बाकी तो हम 1 लाख के नीचे कल हम चले जाते. सो जिस रेट से अगर आप देखेंगे ग्राफ, अभी मैं आपको दिखा था लेकिन आप गूगल करके देख सकते हो कि जिस रेट से हमारा स्लोप डाउन हो रहा है, इट्स अ ट्रेमेंडस फॉल इन द कोविड केसेस. यार एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हमने, इतना एक्सपेक्ट किया ही नहीं था
कि इतना जल्दी फॉल होगा, लेकिन इट्स गुड न्यूज़ फॉर अस यार। और जो अगर हम कनाडा के भी कल के केसेस देखें तो इट वाज अराउंड 1 लाख किधर गया, ओके 1 लाख क्या 1389, तो उधर भी बहुत कम हुए। सो सभी जगह से वापस से पहले जो 2020 में कोविड था वो चला जा रहा था, वैसे ही इस टाइम अभी सब केसेस डाउन हो रहे हैं और सभी सिचुएशंस नॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो रही है। लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट VFS की आई नहीं है। देखते हैं कि जब भी आती है आई विल अपडेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे, लेकिन दिल्ली की आ गई है अपडेट, सो आ जाएगी। सो ये थी आज की अपडेट। सो डोंट वरी यार, ये तो मैंने आपके साथ सिर्फ शेयर किया, और कुछ भी अपडेट आएगा तो आई विल टेल। ये तो दोनों झगड़ रहे अपने आप में, लेकिन ये एक इन्फो थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और दूसरी बात कि आज के जो संडे कमेंट बॉक्स है वो उसकी वीडियो अगर मैं अभी शूट करूँ तो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन मैं जितने भी बच्चों को मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन इन स्पीक, उन सबके क्वेश्चंस मैं आंसर करूँगा, लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स पे, क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो लानी थी इसीलिए मैंने वो शूट नहीं कर सका और रात को फिर लाइव था। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो darshan.1511 मेरा आईडी है, उधर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं उधर रील्स के द्वारा 60 सेकेंड्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ स्टोरीज़ के द्वारा। सो दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो चलिए कमेंट में बातें करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि 66% सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। Had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.